Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss a new topic, that is pastry. As we all know, many of them you should aware about that the term pastry comes from the word pest, which is something in a case. जो भी pest होती है, जो case में होती है, उस particular चीज को pastry कहते हैं. बहुत simple है. So a mixture of flour, liquid and fat. तीन मेजर उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं. कोई एक फ्लावर एंड any liquid and fat, that is called, इससे ये केस बनती है. पेस्ट्री रेफर्स बोथ टू वेरियस पेस्ट और डो एंड मेनी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम चीज डो. उसमें अगर टाइप्स की बात हम लोग टाइप्स के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज अ पेस्ट्री टाइप्स. वन, सो फर्स्ट इज हॉट वाटर पेस्ट्री. उसके बाद में पफ पेस्ट्री, स्वीट पेस्ट्री, फ्लेकी पेस्ट्री, शू पेस्ट्री, डैनिश पेस्ट्री. ये पेस्ट्री के टाइप्स होते हैं. सो व्हाट इज अ हॉट वाटर पेस्ट्री, व्हाई इट इज कॉल्ड हॉट वाटर पेस्ट्री. सो दिस टाइप ऑफ पेस्ट्री मेड बाय मेल्टिंग lard in boiling water and pouring the mixture into the flour, and it needed to dough, it is used to raise the dough. So that is called hot water pastry. So history है उसकी. hot water pastry is originated from England. इस पेस्ट्री का जो बेस है वो इंग्लैंड है. एंड एज द नेम सजेस्ट, द पेस्ट्री इज मेड बाय हीटिंग वाटर, मेल्टिंग द फैट इन दिस, ब्रिंगिंग द बॉयल एंड फाइनली मिक्सिंग विथ फ्लावर. इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फ्लावर, हॉट वाटर, फैट, लार्ड एंड सॉल्ट. इसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो. कोई भी मीट या कोई भी स्वीट ऐड हो सकता है इसमें. उसके बाद में है पफ पेस्ट्री. Then puff pastry is kings of pastry. Everyone knows puff pastry जो होती है, which is very popular. Puff pastry is light, flaky, made by repeatedly layering pastry dough and butter and any other solid fat, called laminating to form thin dough. It is originated from France and it is called as pâté feuilleté or leaf pastry. Okay, so leaf pastry इसलिए होता है because it has layers in it. बहुत सारे उसमें लेयर्स होते हैं एंड फ्लेकी होती है, इसलिए उसे पफ पेस्ट्री कहा जाता है. उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर क्रिस्पी एंड लाइट होता है. एंड इंग्रेडिएंट जो यूज होते हैं फ्लावर, फैट, सॉल्ट, एग एंड वाटर. सो दैट इज कॉल्ड पफ पेस्ट्री. आज यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हो व्हाट इज अ पफ पेस्ट्री इज. Then after one more pastry is a sweet pastry. Sweet paste or sweet pastry is made with the flour, fat, sugar and eggs. It is used to give base to the tart and pies. Ingredient जो है इसमें fat, egg and flour and icing sugar. Then if we talk about, there's one more pastry which is flaky pastry. It is light, flaky, unleavened pastry similar to a puff pastry. उसके जैसी होती है. The main difference is we layer the fat, even rolling or folding in flaky pastry. It was invented in early 17th century and it was originated in country Georgia. Georgian pastry है ये. It is used to make pastries, turnovers, sauces, rolls and plates, जो कि sweets pastry में use होते हैं. Choux pastry. It is a paste prepared by beating eggs into thick mixture of flour, fat, liquid and cooking until smooth. Employs high moisture content to create steam during cooking to the pastry. उसकी हिस्ट्री है. शू पेस्ट्री की मैं आपको क्विकली हिस्ट्री बताता हूँ. A chef by the name of Pantanelli invented the dough in 1540 in France. शू पेस्ट्री जो है उसका इन्वेंशन फ्रांस में हुआ था. एंड पैटिसरी जो 18th सेंचुरी क्रिएटेड हुई थी उसकी, एंड कॉल्ड शू बन्स उसका 18th सेंचुरी में क्रिएट हुआ था. द नेम ऑफ डो देन चेंज टू पेस्ट शू. बटर, वाटर, फ्लावर एंड एग इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. इसका यूज जो होता है इक्लेयर्स के लिए यूज होता है, ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. उसके बाद में प्रॉफिट रोल्स के लिए यूज होता है, अगेन ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. एंड उसका बेगनेट के लिए यूज होता है, अगेन ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. Then Danish pastry. Danish pastry is a multi-layer laminated sweet pastry in tradition. Danish pastry is variant of puff pastry made from laminated yeast, leavened dough, creating layered
टेक्सचर। इसकी हिस्ट्री है, इट वाज इन्वेंटेड इन डेनमार्क in the second half of the 19th century. Danish pastry were exported by ingredients to the United States and are today popular around the world. इसके ingredients है flour, yeast, milk, egg, sugar and इसके जो types है वो pecan, maple Danish from France and Argentina. So the basic understanding of pastry is, again one more definition I would like to share with you all. So that is, a pastry is the name given to various kind of baked product made from ingredients such as flour, sugar, milk, butter, shortening, baking powder or eggs. Okay, so कोई कुछ भी जो baked है और जो केस के साथ में सर्व किया जाता है, इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को यूज होके उनको पेस्ट्री हम उसे कह सकते हैं। अगर शॉर्टकट पेस्ट्री के बारे में बात करें तो यस, शॉर्टकट पेस्ट्री इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन पेस्ट्री. इट इज मेड विद द फ्लावर, फैट, बटर, सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज मेनली इन टार्ट्स में यूज होती है. अगेन द कपकेक्स, इट्स आल्सो कैटेगराइज इनटू द पेस्ट्री. जो स्मॉल कपकेक्स आप नॉर्मली बेक शॉप्स में देख सकते हो, तो ये जो स्मॉल कपकेक्स होते हैं वो बेकरी कैटेगरी में ही पेस्ट्री कैटेगरी में ही आते हैं. अ स्मॉल कपकेक डिजाइन टू सर्व वन पर्सन विच मे बी बेक्ड इन अ स्मॉल थिन पेपर एंड एल्यूमिनियम कप्स. अगेन द माइक्रोन्स, अ टाइप ऑफ लाइट. रिमेंबर गाइस, माइक्रोन्स कपकेक्स ये पेस्ट्री में ही कैटेगराइज होते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द माइक्रोन्स फर्स्ट. अ टाइप ऑफ लाइट बेक्ड कन्फेक्शंस डिस्क्राइब एज मैरिगनी लाइक कुकीज डिपेंडिंग ऑन देयर कंसिस्टेंसी. दीज आर द माइक्रोन. छोटे छोटे स्वीट होते हैं, उनके अंदर क्रीम या कोई भी स्वीट एलिमेंट होता है. पावलोवा, a meringue-based dessert named after the Russian ballet dancer Anna Pavlova. It is a meringue dessert with a crisp crust and soft light inside. Durian crepe, a type of very thin pancake usually made from wheat flour or bucked wheat flour that has durian filling in it. So after the different types of pastry, हम लोग इसके ingredients जो होते हैं वो फॉर गुड पेस्ट्री के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वी विल डिस्कस दैट. सो फर्स्ट इज ऑल पर्पस फ्लावर, अ फर्म फैट यूजुअली वेजिटेबल शॉर्टनिंग और लार्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, 2 टेबलस्पून फॉर ईच 1 कप ऑफ फ्लावर एंड सॉल्ट. ये उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर गुड पेस्ट्री. पर्पस फ्लावर इन रेसिपी, क्या उसका पर्पस है ऑल पर्पस फ्लावर का. ग्लूटेन ऑफ द फ्लावर फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ पेस्ट्री. जो ग्लूटेन होता है फ्लावर के अंदर वो पेस्ट्री का स्ट्रक्चर, जो पेस्ट्री को जो बॉडी क्रिएट होती है वो उससे आती है. विच फैट्स आर यूज्ड टू मेक पेस्ट्री. वेजिटेबल फैट्स, एज आई सेड, always use vegetable fats while creating or while making a dough of pastry. Why wouldn't you use butter or margarine? No, because उसके पीछे रीजन ये है, they produce less tender pastry. और उसके बाद में ऑयल मेक्स मीली पेस्ट्री. जो अगर ऑयल या आप मार्जरीन यूज करते हो तो पेस्ट्री एक मीली हो जाती है. मीली मीन्स थोड़ी सी ऑयली, यू कैन कंसिडर दैट. एंड लार्ड प्रोड्यूस द मोस्ट टेंडर पेस्ट्री. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं उसके. पर्पस ऑफ वाटर इन पेस्ट्री प्रोवाइड्स मॉइस्चर नीडेड टू डेवलप ग्लूटेन. पर्पस ऑफ सॉल्ट जो होता है कॉन्ट्रीब्यूट्स द फ्लेवर, ऑब्वियसली इनहांस द फ्लेवर एंड हैज इन्फ्लुएंस ऑन फ्लेकीनेस एंड टेंडरनेस. जो फ्लेकीनेस आता है पेस्ट्री में वो टेंडरनेस वो सॉल्ट से क्रिएट होता है. बेसिक प्रिंसिपल है ग्लूटेन फॉर्मेशन का. इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर बात करें, फ्लावर यूज होता है, उसका बेसिक जो फॉर्मेशन है, ग्लूटेन इन द फ्लावर फॉर्म अ स्ट्रक्चर इन विच interpreted air and moisture expand during baking, giving a blister effect that is characteristics of flaky pastry. So too much flour will produce tough pastry. अगर फ्लावर का आपका रेशो जो है वो अगर गलत हो जाता है तो पेस्ट्री जो है उसका डो क्रिएट नहीं होगा और फ्लेकी पेस्ट्री उससे बनती है. जो कंसिस्टेंसी जो बॉडी होनी चाहिए पेस्ट्री की वो नहीं मिलेगी. So purpose of flour in pastry, purpose of fat in pastry, sorry. So that is the first. Coat the particle of flour, जो binding agent का काम होता है वो fat का होता है. Separates the gluten strands. Shorten, make tender the pastry, मतलब tenderness आता है डो में. Too much shortening, fragile and crumbliness जो होता है वो fat से ही आता है. एंड टू लिटिल शॉर्टनिंग अगर होती है तो टफ पेस्ट्री हो जाती है. वाटर का यूज़ क्या है, तो ऑब्वियसली टू मच वाटर अगर आता है तो पेस्ट्री विल बी टफ, और कम पानी है
तो पेस्ट्री विल बी ड्राई, क्रम्बी एंड डिफ़िकल्ट टू रोल ओवर। तो जितने भी फ्लावर है, बटर है, ऑल पर्पस फ्लावर है, बटर, मार्जरीन, बटर है या फैट है, तो इनका जो कैलकुलेशन है, इनका जो अमाउंट है, उनका जो रेशो है, वो उतना ही होना चाहिए जितना रेसिपी में मेंशन्ड है। So second principle, mixing and handling of pastry. First of all, temperature of ingredients is very important. So room temperature, more tender pastry. Over mixing the ingredients causes gluten to overdevelop or tough pastry. Three method used to combine pastry ingredients. That is conventional. Combine flour and salt. Cut fat into flour. Mixture with pastry blender until shortening in the size of small peas. Sprinkle water at the time over the flour. Mix lightly with the fork or loose balls. Hot water and oil. पेस्ट्री जो रोल आउट होती है, उसका जो डो बनता है, तो डिपेंड है आप किस टाइप की पेस्ट्री बना रहे हो। आप अगर शॉर्टकट पेस्ट्री है या शूप या फ्लेकी पेस्ट्री है या या आप पफ पेस्ट्री है, कोई भी पेस्ट्री है, उसका डिपेंड होता है कि डो किस तरीके से नीड होता है। एंड डो जब नीड हो जाता है तब उसके बाद में उसका जो रोलिंग है, वो एक रोलिंग प्रोसीजर जो है, वो एक ऑथेंटिक और एक टिपिकल उसे चैनलाइज प्रोसेस ही होनी चाहिए। सो हैंडल द पेस्ट्री एज अ लिटिल पॉसिबल टू अवॉइड टफनिंग इट। ठीक है, अगर पेस्ट्री को आप अच्छे से हैंडल करते हो तो उसकी जो टफनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसको आप नहीं हैंडल करें तो विल बी टफ। सो बेसिक 6 स्टेप्स जो है वो पेस्ट्री रोल करने के टाइम पे वी शुड कंसिडर। दैट इज द गैदर डो इनटू अ फर्म बॉल फर्स्ट। सेकंड है फ्लैटन डो बॉल विथ पाम ऑफ हैंड। थर्ड है रोल पेस्ट्री फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द एज। जो पेस्ट्री जो है उसको सेंटर टुवर्ड एज रोल करना है, एज से सेंटर में रोल नहीं करना है, आपको सेंटर से एज में रोल करना है। सो डो को फ्लैट करके उसको सेंटर से रोल करना है आपको। सो रोल जेंटली अंटिल पेस्ट्री इज 1.8 इंच थिक and 1 inch larger than pie pan. Then after number 5th, fold pastry into 4th, उसको आपको fold कर लेना है। Unfold pastry into pie pan, pressing one side and bottom. Do not stretch the pastry because it will cause shrinking during baking. अगर पेस्ट्री को बहुत ज़्यादा stretch करते हो तो वो shrink हो जाएगी। Then pie crust की अगर बात करें तो flute, pinching the edge of the pastry with your fingerprints to retain filling and create attractive edge. Hook the point of the flute's edge. Third principle of baking pastry is only one rack is needed to bake a pie. Place it in the center of oven. So बहुत सारे आपको रैक्स नहीं अंदर डालने हैं, अगर आप, क्योंकि वो जो उसका हीटिंग है वो सेंटर में आना चाहिए। इफ 2 racks are needed to bake pie, arrange racks evenly in the oven. Arrange the pan to allow the heat to circulate. आइडियली आपको उसको रखना है। गुड पेस्ट्री जो होती है इवनली ब्राउन्ड, एक अच्छी पेस्ट्री जो होती है वो इवनली ब्राउन्ड होनी चाहिए। उसके बाद में उसका जो क्रिस्पी एंड टेंडर्ड होनी चाहिए। उसके बाद में उसका जो सरफेस है वो ब्लिस्टर सरफेस होना चाहिए। What are the ways to use the pastry? First, dessert, fruit pie, custard pie, tart, accompaniment जो होते हैं उसके, वो pastry cut into strips और fancy shapes to garnish salads और soup. Main dish जो है वो quince और chicken pot pie में use होता है। Nutrients and storage जो है pastry का, all pastries contain a high protein fat, contributes energy and calories to the diet. न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल पेस्ट्रीज कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ फैट बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज फैट इंग्रेडिएंट्स। सो फैट अमाउंट जो है वो उसका हाई होता है। कंट्रीब्यूट्स एनर्जी एंड कैलोरीज टू द डाइट। स्टोरेज के बारे में अगर बात करें तो स्टोर अनयूज शिफॉन्स, कस्टर्ड एंड मीट पाइज इन द फ्रिज। Both baked and unbaked pies can be frozen. और आप उसको wrap भी कर सकते हो और फ्रीजर बैग में रख के। कन्वीनियंस क्या होते हैं पेस्ट्रीज का? 4 form of convenience pastries are mixes frozen, whole pies, pies filling, canned custard ready to eat. You can create homemade pastry mix. Combine the correct proportion of flour, salt and shortening
store in the airtight container, and water when you are ready to bake the pie. So these are the basic techniques we should use while making the pastry. So guys, I think so you understand the various types of pastry, you understand the ingredients of being used in the pastry. You today we learn storage of pastry, today we learn how to knead the dough, how to roll the pastry dough. हमने आज ये सब पढ़ा है. उसके बाद में किस तरीके के पेस्ट्री के फूड में, डाइट में किस तरीके की पेस्ट्री की वैल्यूज़ होती है, एंड स्टोरेज किस तरीके का होना चाहिए पेस्ट्रीज का, हमने ये सारा पढ़ा. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, सो प्लीज़ let me know and I'm happy to answer that. So guys, everyone, take care of yourself. Thank you. Bye for now.